So students, we come to the second lecture of definite integration now. Hope you must have seen the first lecture of definite integration. Definite integration part 2. We start with an important note. In problems of definite integration, whenever you do substitution, definite integration के problem में जब भी हम substitution करेंगे, alright, you have to change the limits of integration. Limits of integration change करना पड़ेगा. We have to change the limits of integration, alright, and do not back substitute after integrating. Integrate करने के बाद back substitute नहीं करना है. Don't back substitute after integrating, alright. Substitution का मतलब होता है change of variable. Substitution का मतलब होता है change of variable. So जब भी हम substitution करेंगे, variable x में से variable t बन जाएगा. अगर variable x होगा तो limits of x काम आएगा, लेकिन variable t होगा तो limits of t, limits of x काम नहीं आएगा. We have to use the limits of integration. Change the limits of integration. That is why whenever we do substitution, we have to change the limits of integration. Alright, and because we are changing the limits, we don't have to back substitute after integrating. We come to question number 9. We have done up to question number 8 last lecture. Question 9. Integral from 1 to 3. Integral from 1 to 3. Cos log x upon x. This cos log x is like cos u. ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है. दिस इज cos u where u is equal to log x. So we have to put substitution. Now you know the method. जो भी u होगा उसको t लिखना है. So we put log x equal to t. We can put log x equal to t because log x का डेरिवेटिव 1 upon x प्रेजेंट है. We differentiate with respect to x. 1 by x is equal to dt by dx. Therefore, dx upon x will become dt. Now we change the limits. When x is 1, what is t? Log x. So t will become log 1, which is 0. And when x is 3, t will become log 3. So integral I will become जहां 1 है वहां 0 आएगा. When x is 1, t is 0, तो ये लोअर लिमिट 0 हो जाएगा एंड अपर लिमिट 3 के जगह पे log 3 हो जाएगा. So limits of integration, जहां 1 है वहां 0 आएगा, जहां 3 है वहां log 3 आएगा. What is log x? t. So it will become cos t. And ये जो dx upon x है, that we will replace by dt. dx upon x will replace by dt. So it will become cos t dt. We know integration of cos t is sin t. So we write sin t from 0 to log 3. अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, बाद में वैल्यू ऑफ t को बैक सब्सटीट्यूट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये t का ही लिमिट्स है. तो नाउ विल पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. मतलब जहां t है वहां log 3, फिर जहां t है वहां 0, तो आएगा sin log 3 माइनस साइन 0. वी नो साइन 0 इज 0, तो आंसर आएगा साइन log 3. Therefore, integral from 1 to 3 cos log x upon x आंसर आएगा साइन log 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. सो जब भी हम
डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी हैव टू चेंज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्यों चेंज करने का? क्योंकि पहले वेरिएबल था x, अब वेरिएबल है t, तो x जब होगा तो लिमिट्स ऑफ x चलेगा, t जब होगा तो लिमिट्स ऑफ t लगेगा। ऑलराइट, इंडिया में रुपीस चलेगा, यूएसए में डॉलर लगता है। ऑलराइट, सो व्हेन द वेरिएबल इज x, वी वर्क विथ लिमिट्स ऑफ x, व्हेन वेरिएबल इज t, we work with limits of t. All right, now we come to question number 10. 0 to pi by 4, we say prove that 0 to pi by 4 sec raised to 4 dx, sec raised to 4x dx equal to your 4 by 3. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अभी इसे लेट i इक्वल टू 0 to pi by 4, ये हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखा है कि जब भी sec x या cosec x का इवन पावर आएगा उसको स्प्लिट करने का, sec x का इवन पावर होगा तो sec स्क्वायर x के टर्म्स में स्प्लिट करने का, cosec स्क्वायर x का इवन पावर होगा तो cosec का इवन पावर होगा तो cosec स्क्वायर के टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। तो अभी इसको sec रेस टू 4 को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक sec स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, दूसरे sec स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे। एक sec स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, दूसरे sec स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे। देयरफॉर इंटीग्रल i विल बिकम in place of sec x raised to 4 we write 1 plus tan square x into sec square x। अब ये जो है अगेन ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, दिस इज u स्क्वायर वेयर u is equal to tan x, so we'll put tan x equal to t, सब्स्टिट्यूशन करेंगे tan x is equal to t। We'll say let tan x equal to t. tan x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि tan x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। विल नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sec square x is equal to dt by dx, therefore sec square x dx will become dt। we also have to change the limits, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट्स चेंज करना नेसेसरी है। सो व्हाट इज द लोअर लिमिट? 0, तो आएगा व्हेन x इज 0 t विल बिकम, यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा tan 0 विच इज 0, एंड व्हेन x इज pi by 4 t विल बिकम tan pi by 4 विच इज 1। तो लिमिट्स बन जाएगा 0 के सामने 0 आएगा और pi by 4 के सामने 1 आएगा, 0 के सामने 0, pi by 4 के सामने 1, 0 के सामने 0, pi by 4 के सामने 1, एंड ये tan x के बदले t आएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड ये sec स्क्वायर x dx जो है दैट विल बिकम dt, sec स्क्वायर x dx के जगह पे dt आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगा 1 का टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, ये 1 dt है, 1 dt है तो t आएगा, x नहीं आएगा, 1 विथ रिस्पेक्ट टू t है, फ्रॉम 0 to 1, सो दिस विल बिकम 1
प्लस 1/3 0 माइनस 0/3। पहले जहां जहां t है वहां 1 लिखेंगे, जहां t है वहां 1 लिखेंगे तो आएगा 1, 1 क्यूब इज 1, सो 1/3 0 and 0/3, so this will become alright, therefore ये इंटीग्रल का वैल्यू 0 to π/4 आंसर आएगा 4/3। ये 10th जो सम था दैट वाज सॉल्व्ड, ये 10th सम जो था दैट वाज सॉल्व्ड, ये सॉल्व्ड है, नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है। इलेवेंथ, जीरो टू π/2, इलेवेंथ इज इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें पहले सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x/2 कॉस x/2। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब ये न्यूमरेटर में हम यहां पे 3 अलग अलग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। First formula we are using is cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta। अगर 2 theta होगा तो राइट हैंड साइड पे theta आएगा, तो यहां x है तो यहां x/2 आएगा, एंड 1 प्लस cos 2 theta is 2 cos square theta। अगर यहां पे 2 theta है तो यहां पे theta आएगा, सिमिलरली यहां पे x है तो यहां पे x/2 आएगा, एंड sin 2 theta is 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे साइन एक्स है तो 2 साइन x/2 कॉस x/2 आएगा। अब ये जो न्यूमरेटर है इट इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ये न्यूमरेटर का 2 फैक्टर्स आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2 फैक्टर्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, कुछ कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकलेगा? 2 cos x/2, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकलेगा, cos कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, तो ये वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। हमने यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2 फैक्टर लिखा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ऑलराइट, अब इसको ये 2 को साइड पे ले लेंगे,
एंड स्प्लिट कर देंगे। ये 2 को साइड पे ले लिया, ये आएगा हाफ एज इट इज एंड 1 माइनस 10x/2। ये सिंप्लीफिकेशन है। दिस इज नाउ 0 to π/2। यह हाफ बाहर आ जाएगा, 1 का x हो जाएगा एंड ये tan x/2 का 1/1/2 log sec x/2। x का कोएफिशिएंट हाफ है, x का कोएफिशिएंट हाफ है तो हाफ से डिवाइड होगा और 10 का log sec हो जाएगा फ्रॉम 0 to π/2। सो दिस विल बिकम half of x minus 2 log ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x/2 माइनस log sec x/2 फ्रॉम 0 to π/2। अब पहले अपर लिमिट लिखेंगे, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां x है वहां π/2 डालेंगे। x अगर π/2 है तो x/2 π/4 हो जाएगा, π/2 का आधा π/4। पहले जहां x है वहां π/2 लिखेंगे एंड फिर जहां x है वहां 0 लिखेंगे तो आएगा 0/2 विल बी 0 ओनली, 0/2 विल बी 0, माइनस का प्लस हो जाएगा एंड log sec 0। दिस विल बिकम π/4 माइनस द वैल्यू ऑफ sec 45 इज √2। ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है एंड ये बन जाएगा log 1। वैल्यू ऑफ sec 45 इज √2। वी नो वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1/√2। cos 45 1/√2 है तो sec उसका रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा एंड cos 0 1 है तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। बट वी नो वैल्यू ऑफ log 1 इज 0, ये 0 हो जाएगा। आंसर आएगा π/4 माइनस log √2। आंसर आएगा π/4 माइनस log √2। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 0 to π/2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x। π/4 माइनस log √2 इज द आंसर। यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया और बाद में इंटीग्रेट कर दिया। ऑलराइट, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला और इधर sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने यहां पे ग्रीन पेन से लिखा था। ऑलराइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इनफैक्ट 12 से लेके 18 तक ऑल प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट। सो 10 से लेके 18 तक ऑल प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम 10 टू प्रॉब्लम 18। Question number 12. Integral from 0 to 4. This is quadratic expression. Denominator में quadratic expression है. So this is 1 upon root of quadratic expression. So we have to
whenever we have root of quadratic expression, we have to make it a perfect square. We take minus common, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो माइनस कॉमन ले लिया. ऑलराइट, नाउ मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 4, आधा करेंगे तो 2, स्क्वायर करेंगे तो 4. सो वी हैव टू ऐड 4 एंड सबट्रैक्ट 4. ऐड एंड ऐड, एक्चुअली ऐड इनसाइड, ऐड आउटसाइड. बाहर 4 ऐड किया और अंदर भी 4 ऐड किया. सो दिस विल बिकम 4 एज इट इज, एंड दिस इज, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. ये टाइप का सम हमने ऑलरेडी इंडेफिनिट में किया हुआ है. दिस इज नाउ रूट ऑफ लिमिट्स आर 0 to 4. न्यूमरेटर में आएगा dx, डिनोमिनेटर में आएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर. दिस इज लाइक वन अपॉन अंडर रूट a square minus x square. That is our Botany formula. The difference is x के जगह पे x minus 2 है, x के जगह पे x minus 2 है, कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 आएगा आगे, 1 by 1 एंड साइन इनवर्स sin inverse x by a. All right, 1 by 1 and limits are 0 to 4. तो पहले जहां we are using this formula. We are using this formula, integral dx upon under root a square minus x square is sin inverse of x by a. अब पहले जहां x है वहां 4 आएगा, फिर जहां x है वहां 0 आएगा. ऑलराइट, रिप्लेस x by 0, पहले रिप्लेस x by 4 तो आएगा sin इनवर्स 2 upon 2. पहले 4 डालेंगे तो 4 माइनस 2, 2 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x के बदले 0 डाल दो पे तो 0 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन 2. सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1. वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2. साइन इनवर्स 1 का वैल्यू है पाई बाई 2. साइन इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू है माइनस पाई बाई 2. साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, साइन इनवर्स माइनस 1 इज माइनस पाई बाई 2. तो आएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2. आंसर आएगा पाई. आंसर आएगा पाई. ये 12th इंपॉर्टेंट है और सॉल्व भी है. थर्टींथ, ये टाइप का सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है. ऑलराइट, डिफरेंस यहां तक का सम सेम ही रहता है, सिर्फ पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और डाल के कैलकुलेशन करना रहता है. 13th, फ्रॉम -4 to 2. This is वन अपॉन QE. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस यह है कि यहां पे डिनोमिनेटर में रूट था तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक था, यहां पे रूट नहीं है. सो दिस इज ओनली QE. सो अगेन वी कंसिडर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, आधा करेंगे तो 2, स्क्वायर करेंगे तो 4, सो वी हैव टू ऐड 4 एंड सबट्रैक्ट 4. दिस विल बिकम x plus 2 the whole square plus 9. ये x square plus 4x plus 4 is x plus 2 the whole square, and 13 minus 4 will be 9. This is this will be now like 1 upon x square plus a square means जापान फॉर्मूला का आंसर है 1 upon x square plus a square का आंसर है 1 by a tan inverse of x by a. 1 upon x square plus a square का आंसर है 1 by a tan inverse of x by a. The difference is यहां x के बदले x प्लस 2 है, तो कोइफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 आएगा, सो 1 बाय 1, देन 1 अपॉन a का वैल्यू 3 है, सो 1 बाय 3 एंड tan इनवर्स x प्लस 2 बाय 3 फ्रॉम -4 to 2. So this will be पहले x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, सो 1 बाई 3 आगे मेंटेन रहेगा, एंड tan इनवर्स ऑफ 4 बाई 3, x के बदले पहले 2 लिखो तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, फिर x के बदले -4 लिखो तो आएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ -2 बाई 3. सो दिस विल बिकम, ये पहले x के बदले 2 डाल दिया तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और -4 डाला, राइट, सो दिस विल बिकम 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ 4 बाई 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 3. वी आर यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला. tan inverse of minus theta is minus of tan inverse of theta. We have done this in 12th standard inverse trigonometry. tan inverse of minus theta is minus of, तो ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13. नाउ वी कम टू क्वेश्चन 14. -1 to 1. ये टाइप का सम हमने ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया हुआ है. ये टाइप का सम हमने ऑलरेडी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया हुआ है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, 1 upon 4 e raised to x minus 9 e raised to minus x. यहां पे हमने ऐसे किया था, e raised to minus x को डिनोमिनेटर में लेके सिंप्लीफाई किया था. सेम वे यहां पे करेंगे. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एंड सॉल्व्ड.
We consider this. ये ई रेस टू माइनस एक्स को डिनोमिनेटर में ले लिया तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स हो जाएगा. वी टेक एलसीएम. ये ई रेस टू एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो इंटीग्रल आई बन जाएगा -1 to 1 दिस डिनोमिनेटर में देयर शुड बी एक्स स्क्वायर. यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यू स्क्वायर है. मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. वेयर सो वील पुट ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी. वी कैन पुट ई रेस टू एक्स एस टी बिकॉज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट. e raised to x will become dt by dx. अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, वी चेंज द लिमिट्स. व्हेन x is -1 t will become, put -1 here, e raised to -1, that is 1 upon e. And when x is 1, so limits बन जाएगा जहां -1 है वहां 1 अपॉन ई आएगा, जहां -1 है वहां 1 अपॉन ई आएगा, और जहां 1 है वहां ई आएगा. न्यूमरेटर में ये ई रेस टू एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी आ जाएगा. ई रेस टू एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी आ जाएगा और ई रेस टू एक्स के जगह पे टी आ जाएगा. सो दिस विल बिकम क्या बन जाएगा? This is like 1 upon x square plus a square again. Means it is जापान फॉर्मूला. जापान फॉर्मूला में पहले x के जगह पे 80 है, x के जगह पे 80 है तो कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. t का कोएफिशिएंट है a तो आगे आएगा 1 अपॉन a. फिर फॉर्मूला में a स्क्वायर के जगह पे b स्क्वायर है, फॉर्मूला है 1 अपॉन a तो इधर आएगा 1 अपॉन b. tan इनवर्स ऑफ 80 बाई b. फॉर्मूला है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a. ऑलराइट, फ्रॉम 1 अपॉन ई टू ई. अब पहले जहां t है वहां t के बदले e लिखेंगे, फिर t के बदले 1 अपॉन ई लिखेंगे तो आएगा 1 अपॉन ए बी एज इट इज tan इनवर्स ऑफ t के बदले e लिखो तो आएगा
ए बाई बी और टी के बदले 1/e लिखो तो नीचे ही आएगा। ये टी के बदले 1/e लिखेंगे तो नीचे ही आएगा। दिस इज द आंसर 1/ab tan inverse of AE by B minus A/BE. Again we are using 1/x square plus a square वाला फॉर्मूला। The answer is 1/a tan inverse of x/a। यहां पे x के जगह पे 80 है तो अंदर ऊपर 80 आएगा, a के जगह पे b है तो नीचे b आएगा। अगेन फॉर्मूला में 1/a है तो इधर 1/b आएगा और x के जगह पे 80 है, t का कोएफिशिएंट है a तो आगे डिवाइड बाय a आएगा। दिस इज क्वेश्चन 14। इट इज गिवन सॉल्व्ड। ऑलराइट, 15th अगेन इसके जैसा सिमिलर प्रॉब्लम हमने किया हुआ है। ये टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। √a minus x upon a plus x. We have to multiply and divide by the numerator. ये टाइप का सम हमने किया हुआ है, 2-3 किया हुआ है। √a minus x upon a plus x या √a plus x upon a minus x, जो भी टर्म न्यूमरेटर में होगा उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ऑलराइट, अगेन इसको कंसिडर करेंगे। न्यूमरेटर में a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा न्यूमरेटर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्प्लिट कर देंगे, what is the derivative of 1 minus x square? That we will adjust here. Derivative of 1 minus x square is minus 2x. वो यहां पे हम एडजस्ट करेंगे, ऑलरेडी x है यहां पे, सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ऑलरेडी माइनस तो है ही, this is the simplification of root. These steps are very important. You have to multiply and divide by 2 in the last step. So this will become (0 to 1) 1 upon root of and अब ये जो है दिस इज लाइक f' अपॉन रूट ऑफ fx। आंसर आएगा 2 रूट fx।
this will become sin inverse x, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स, हाफ एज इट इज रहेगा, एंड ये फॉर्मूला हमको मालूम है एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स बिकम्स 2√f(x) from 0 to 1. This 2 and 2 get cancelled. We write the formula, we apply. f dash x upon root f(x) becomes 2√f(x). अब पहले जहां x है वहां 1 लिखेंगे, x के जगह पे 1 लिखेंगे, फिर x के जगह पे 0 लिखेंगे, तो आएगा साइन इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 1 एंड माइनस साइन इनवर्स 0, x के जगह पे 0 लिखेंगे लोअर लिमिट, एंड रूट ऑफ 1 माइनस 0, लोअर लिमिट में दोनों पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो जाएगा. वी नो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0. ऑलराइट, क्या है साइन इनवर्स 1 का वैल्यू? वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 इज π/2. साइन इनवर्स 1 इज π/2 एंड 1 का रूट आएगा 1. आंसर आएगा π/2 माइनस 1. आंसर आएगा π/2 माइनस 1. सो पहले जो टर्म न्यूमरेटर में उससे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट आएगा a, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे रूट हो जाएगा, स्प्लिट कर देंगे, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अगेन यहां तक का सम हमने ऑलरेडी किया हुआ है इंडेफिनेट में. ऑलराइट, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 16th, सिक्सटींथ 0 to π/2 dx upon 5 plus 4 cos x. This is like 1 upon a plus b cos x. अगेन ये टाइप का सम हमने इनडेफिनेट में किया हुआ है. जब भी डिनोमिनेटर में sin x या cos x आएगा तो वी हैव टू पुट स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन tan x/2 इक्वल टू t. स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन tan x/2 इक्वल टू t. डिनोमिनेटर में जब भी sin x या cos x आएगा, वी हैव टू पुट tan x/2 इक्वल टू t. सो x/2 will become tan inverse t. So x will become 2 tan inverse t. Will differentiate with respect to t. So dx by dt will become 2 upon. So dx will become 2 dt upon. Now we change the limits. When x is 0, we have to also write the value of cos x. क्या होगा cos x का फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. So cos x will become, ये tan x/2 t है, now we change the limits. When x is 0, t will become tan 0. x के बदले 0 डाल दो, 0 upon 2 is 0, value of tan 0 is 0,
and when x is pi by 2, t will become tan pi by 4. ये x पाई बाई 2 है तो यहां पे x बाई 2 है तो पाई बाई 2 90 का आधा 45 हो जाएगा. वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1. सो इंटीग्रल I विल बिकम, न्यूमरेटर में जो लोअर लिमिट है, पहली बात 0 के सामने 0 आएगा और पाई बाई 2 के सामने 1 आ जाएगा. 0 to 1. न्यूमरेटर में dx के जगह पे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 5 प्लस 4 टाइम्स फाइव प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. डायरेक्ट ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल नहीं होगा. वी टेक एलसीएम. आएगा 5 प्लस 5 टी स्क्वायर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विच विल गेट कैंसल्ड. नाउ 0 to 1 2 dt upon 5 t square minus 4 t square will become t square and 5 plus 4 will become 9. ये 2 बाहर आ जाएगा. This is now 1 upon x square plus a square means Japan formula. One upon x square plus a square means Japan formula. 2 will remain as it is and 1 by 3 tan inverse of t by 3 from 0 to 1. तो ये बन जाएगा 2 by 3 tan inverse of 1 by 3. पहले t के जगह पे 1 लिख देंगे. पहले t के बदले 1 लिखेंगे फिर t के बदले 0 लिखेंगे तो आएगा tan inverse of 0. ये 0 लिखेंगे. 0 upon 3 will become 0. Alright. Now we know the value of tan inverse 0 is 0. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो आंसर आएगा 2 by 3 tan inverse 1 by 3. आंसर आएगा 2 by 3 tan inverse of 1 by 3. अगेन ये टाइप का सम, ये सेम सम हमने इनडेफिनेट में किया है. ये कैलकुलेशन सेम रहेगा. ये सेम सम हमने किया है, वहां पे ये लिमिट्स नहीं दिया था. ऑलराइट, ये सेम सम हमने इनडेफिनेट में किया है. यहां तक का कैलकुलेशन सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्वेश्चन 17. 17th is identical to the 16th. Zero to pi dx upon 3 plus 2 sin x plus cos x. ये सॉल्व दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है और सॉल्व भी दिया हुआ है. ओनली डिफरेंस इज यहां पे डिनोमिनेटर में sin x और cos x दोनों है. डिनोमिनेटर में sin x cos x दोनों होगा तो दोनों का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और दोनों का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. क्या आएगा sin x का फॉर्मूला? sin x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x लिखना पड़ेगा, tan x by 2. तो this part will remain the same. क्या है cos x का फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर.
और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x by 2 अपॉन, therefore cos x आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स आएगा 2t अपॉन tan x बाई 2t है तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, tan x बाई 2t है, ऑलराइट। तो ये बनेगा, नाउ वी चेंज द लिमिट्स, व्हेन x is 0 t will be tan 0 which is 0, and when x is pi t will become tan pi by 2। यहां पे x के जगह पे पाई लिखेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ tan 90 इज इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर मतलब वैल्यू अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाएगा। देयरफॉर ये जो लिमिट्स है, ये 0 to 1 जो था उसमें से 0 to इंफिनिटी बन जाएगा, 0 to इंफिनिटी, dx के जगह पे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 3 as it is 2 times 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड ये साइन एक्स के बदले साइन एक्स का वैल्यू लिखा, cos x की जगह पे cos x का वैल्यू लिखेंगे। अगेन डायरेक्ट 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, लिमिट 0 to 1 नहीं आएगा, 0 to इंफिनिटी आएगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 इंटू 2t विल बिकम 4t एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स बनेगा 0 टू इंफिनिटी 2 dt अपॉन क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर विल बिकम 2t स्क्वायर, 3t square minus t square will become 2t square, 4t as it is, and 3 plus 1 4 हो जाएगा, this will become 0 to infinity, take 2 common, this 2 and 2 get cancelled, so this is now 1 upon quadratic expression, ये quadratic बन गया। तो इसको अभी परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, दिस इज नाउ 0 टू इंफिनिटी, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 2, आधा करेंगे तो 1, स्क्वायर करेंगे तो 1, सो ये 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, सो दिस इज नाउ, दिस विल बिकम, ये सॉल्व दिया हुआ है 17th, ऑलराइट, दिस इज 0 to infinity dt upon t plus 1 the whole square, ये t square plus 2t plus 1, this is again our Japan formula, जापान फॉर्मूला, x के जगह पे x के जगह पे t प्लस 1 है, x के जगह पे t प्लस 1 है, कोएफिशिएंट 1 है तो आगे डिवाइड बाय 1 आएगा, फिर a के बदले भी 1 ही है, दिस इज 1 स्क्वायर, तो 1 by 1 1 by 1 एंड tan इनवर्स ऑफ t plus 1 by 1 from 0 to infinity, so this will become
tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये t के बदले पहले इंफिनिटी लिखेंगे, ये 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है, ये t के बदले इंफिनिटी लिखेंगे। व्हाट इज इंफिनिटी प्लस 1? इंफिनिटी ओनली। महासागर में एक बूंद ऐड करेंगे तो महासागर ही रहेगा, राइट। तो इंफिनिटी प्लस 1 इज इंफिनिटी, एंड लोअर लिमिट में 0 प्लस 1 इज 1। व्हाट इज tan इनवर्स इंफिनिटी? इट इज π/2, and tan inverse 1 is π/4. Tan inverse infinity is π/2, tan inverse 1 is π/4. 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, that is the answer. This 17th is given solved. 18th, is again an important sum. इसमें पहला एक दो स्टेप्स टिपिकल है। This step is important. जैसे हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम सॉल्व किया है कि जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, वी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हमने ये टाइप का सम किया हुआ है, 1/3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, we have to divide by cos square x. Divide numerator and denominator by cos square x. ये टाइप का सम हमने किया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, ऑलराइट। यहां पे डिनोमिनेटर में sin raised to 4 cos raised to 4 है, तो we have to divide by cos raised to 4x. We divide numerator and denominator by cos raised to 4x. So this will become ये cos raised to 4 का दो पार्ट में स्प्लिट किया, ऑलराइट, और इसको स्प्लिट कर दिया। ये डिनोमिनेटर में cos raised to 4 को दोनों टर्म के नीचे ले लिया, तो यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे एक cos x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, और यहां पे 1 आया तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे cos रेस टू 4 कैंसिल होके 1 आएगा, और साइन रेस टू 4 अपॉन cos रेस टू 4 को हम लिख सकते हैं tan रेस टू 4। अब यहां पे
ये 10⁴ को 10 स्क्वायर द होल स्क्वायर लिखेंगे. दिस इज लाइक u स्क्वायर, where u equal to tan square x. So we'll put tan square x equal to t. We'll put tan square x equal to t. इसको डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज tan square x itself is u square. So 2 tan x derivative of tan x is equal to dt by dx. ये tan स्क्वायर जो है दैट इटसेल्फ इज u स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2u du बाई dx. तो डेरिवेटिव आएगा 2 tan x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. ये पूरा क्वांटिटी प्रेजेंट है यहां पे. नाउ वी चेंज द लिमिट्स. व्हेन x इज 0 t will be tan square 0 which is 0. When x is pi by 4 t will be tan square pi by 4 which is 1. So लिमिट्स बन जाएगा 0 to 1. ये पूरा क्वांटिटी ये पूरा क्वांटिटी 2 tan x sec square x dx will become dt. तो न्यूमरेटर में आएगा dt, डिनोमिनेटर में आएगा t स्क्वायर प्लस 1. दिस इज आंसर आएगा tan इनवर्स t. 1 by 1 प्लस टी स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan इनवर्स t फ्रॉम 0 to 1. तो आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 1 is pi by 4, tan इनवर्स 0 is 0. तो आंसर आएगा pi by 4. These steps are important. पहले जो हमने cos x raised to 4 से डिवाइड किया वो टिपिकल था और ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, नाउ वी कम टू क्वेश्चन 19. नाइनटीन्थ में लिमिट्स है 0 to pi by 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x. ये न्यूमरेटर में जो cos x है उसको लिख सकते हैं ये न्यूमरेटर में जो cos x है उसको लिख सकते हैं 1 cos x प्लस 0 sin x. तो ये बन जाएगा
ये क्वेश्चन बन जाएगा ये टाइप का, a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x। जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, वी हैव टू एडजस्ट द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। What is the derivative of denominator? Minus 3 sin x plus cos x, which is not equal to the numerator. So we have to say, let numerator equal to a times the denominator plus b times the derivative of denominator. Again, we have done this type of problem. What is the numerator? Cos x a times, what is the denominator? 3 cos x plus sin x, and b times minus 3 sin x plus cos x. This will become 1 cos x plus 0 sin x. We take the terms in cos x together. इसको अंदर मल्टीप्लाई करके cos x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3a प्लस b टाइम्स cos x। ये 3a cos x और यहां पे आएगा b cos x, तो आएगा 3a प्लस b cos x, एंड इसको अंदर मल्टीप्लाई करके a sin x माइनस 3b sin x, तो आएगा a माइनस 3b sin x। नाउ वी विल कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग, comparing the corresponding terms, all right, we compare cos x का कोएफिशिएंट विथ cos x का कोएफिशिएंट एंड sin x का कोएफिशिएंट विथ sin x का कोएफिशिएंट, तो आएगा 3a प्लस b इक्वल टू 1 एंड a माइनस 3b इक्वल टू 0। कंपेयर cos x का कोएफिशिएंट विथ cos x का कोएफिशिएंट, sin x का कोएफिशिएंट विथ sin x का कोएफिशिएंट। ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। इनफैक्ट यहां से मैं ये a का वैल्यू 3b आ जाएगा, वो यहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो 3 टाइम्स 3b that is 9b plus b, 10b equal to 1, so b is equal to 1 upon 10, and what is a is 3 times b, therefore a will become 3 upon 10, value of a आएगा 3 upon 10। therefore ये वैल्यू को हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो cos x विल बिकम व्हाट इज a 3 अपॉन 10 ब्रैकेट्स में ये वैल्यू ऑफ a सब्सटीट्यूट करेंगे 3 अपॉन 10 एंड b आएगा 1 बाई 10 माइनस 3 साइन x प्लस cos x। ये a का वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट किया और b का वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट किया। प्लीज नोट, ये ब्रैकेट ओपन करने का कोई रीजन नहीं है, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही cos x वापस आ जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ वी डिवाइड बाय
डिनोमिनेटर क्या है, देयरफॉर ये डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा cos x अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स, इधर 3 cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और इधर 1/10 एज इट इज रहेगा। अब ये जो नॉन इंटीग्रेबल था cos x अपॉन 3 cos x प्लस साइन एक्स, ये टर्म के जगह पे ये टर्म इधर सब्सटीट्यूट कर दिया, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू ये है। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये डिनोमिनेटर में fx, तो न्यूमरेटर में आएगा f डैश x। So this will become 3/10 का इंटीग्रेशन होगा 3/10 टाइम्स x एंड 1/10 log ऑफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f डैश x अपॉन एफ एक्स आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा अभी 3/10 टाइम्स π/2। पहले अपर लिमिट लिखेंगे, मतलब जहां x है वहां π/2, x के बदले π/2 लिखेंगे तो 3/10 टाइम्स π/2 एंड 1/10 टाइम्स x के बदले π/2 डालेंगे, वैल्यू ऑफ cos 90 इज 0, वैल्यू ऑफ sin 90 इज 1। ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट में आएगा 3/10 इंटू 0, x के जगह पे 0 डाल देंगे एंड माइनस 1/10 लोअर लिमिट में x के बदले 0 आ जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू 1 है और sin 0 का वैल्यू 0 है, तो ये बन जाएगा 3π/20 1/10 log 1 माइनस 0 1/10 log 3। ये 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, ये log 1 का वैल्यू 0 है, तो आएगा 3π/20 माइनस 0, 3π/20 माइनस 1/10 log 3, आंसर आएगा 3π/20 माइनस 1/10 log 3, 3π/20 3π/20 minus 1/10 log 3 is the answer. This even 19th is important. तो आज हमने स्टूडेंट्स टाइप 1 का प्रॉब्लम नंबर 9 से लेके प्रॉब्लम नंबर 19 तक किया। ऑलराइट, प्लीज रिवाइज दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टाइप 1 खत्म करेंगे। टाइप 1 इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, खाली लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऑलराइट, प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग।